Hello everyone, this is the fourth lecture on alcohols, phenols and ethers, and in this lecture we will discuss physical and chemical properties of phenols. So let's start with physical properties of phenols. So first of all we will talk about the physical state. So generally phenols are either liquids, that is colorless liquids, or crystalline solids. So जो phenol होंगे they are either crystalline solids या फिर liquids होंगे having low melting point. अगर solids में होंगे तो उनके जो melting points होंगे वो क्या होंगे, बहुत low होंगे. So physical state generally liquid होती है या फिर crystalline solids होंगे with low melting point. Then if you talk about the solubility, they are less soluble as compared to alcohols. तो अगर आप alcohol से phenols का comparison करोगे so they are very less soluble. Now what is the reason behind this? You know that in between the alcohols and water there is hydrogen bondings. तो आपको पता है जो alcohols की solubility की बात की, alcohols are highly soluble. alcohols काफी ज्यादा soluble होते हैं. Starting के alcohols तो बहुत ज्यादा dissolve होते हैं. Now if you talk about the phenols, they are less soluble, very less soluble, or you can say they are partially soluble in water. अब ऐसा क्यों होता है? So let's see, they also form the hydrogen bonds. वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल this is case of phenol, so it will combine with water molecule, so it is like O, then H, then O. Now again this is the OH, H, that is water molecule. तो यहाँ पे आपको पता है partially negative, partially positive, partially negative, partially positive. Then again a phenol molecule will be there, so it will be like this, O, then partially negative, then H, and then O, and so on. तो इस तरीके से ये चलता रहेगा. So partially positive, partially negative. Now you can see here there is hydrogen bonding. Hydrogen bonding हो रही है between phenol and water molecule. But due to the large size of this aromatic group, इस aromatic group की वजह से the force of attraction, this hydrogen bond is not very strong. क्योंकि aromatic group क्या है, that is very large, बहुत बड़ा aromatic group होता है, और इस इतने बड़े aromatic group की वजह से जो force of attraction होता है यहाँ पे वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है. और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा force of attraction नहीं होता है मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, इतने बड़े ग्रुप को होल्ड करता नहीं है, कर नहीं पाता है ठीक से, और उसी की वजह से ये वाटर के साथ प्रॉपरली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता है जितने अच्छे से अल्कोहल फॉर्म कर सकता है. और यही रीजन है कि ये कम सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में. सो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द रीजन फॉर लो सॉल्युबिलिटी. द नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट. सो जनरली इफ वी कंपेयर इट विद द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, और यू कैन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ कंपेयर करोगे इसके मॉलिक्यूलर मास के आसपास वालों के, तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज क्वाइट high as compared to those of aromatic hydrocarbons. So if you talk about OH, और इसके जो आसपास का molecular mass होता है किसका होता है, that is toluene. So it is phenol, it is toluene. तो phenol और toluene में किसका higher boiling point होगा, that is of phenol. तो phenol का जो boiling point होगा that will be higher. अब phenol का higher boiling point होगा क्यों, because of formation of hydrogen bonding between the phenol molecule, while there is no formation of hydrogen bonding between the molecules of toluene. तो जो phenol के molecules होंगे उनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. O, then H, this is negative, this is positive, then again O, then H, again negative, positive, and so on. तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं. द नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स. सो एज वी हैव स्टडीड इन द अल्कोहल्स वी विल आल्सो स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज वन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप एंड अदर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग aromatic ring. So let's study them one by one. The first is reactions involving OH group. तो जो
रिएक्शंस OH ग्रुप में होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जिनमें केवल OH ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जो एरोमेटिक रिंग है। तो आप देख रहे हो अगर फिनॉल की हम बात करें, सो देयर इज OH ग्रुप। सो अगर केवल ये जो OH ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करे तो क्या होगी, कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं और कौन कौन सी रिएक्शन में ये एरोमेटिक रिंग भी पार्टिसिपेट करता है। सो लेट्स सी, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शंस व्हिच आर सिमिलर टू दोज ऑफ अल्कोहल्स। तो इसी में पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। तो इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शंस सिमिलर टू दोज ऑफ रिएक्शंस अल्कोहल जैसी होती है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद मेटल्स, तो मेटल्स के साथ कैसी रिएक्शन होती है, मेटल्स के साथ फॉर एग्जांपल सोडियम OH that is phenol plus sodium, so it will form sodium phenoxide plus hydrogen gas will be liberated. So you can see from here reaction of phenols with sodium is similar to the reaction of alcohols with sodium. तो सोडियम के साथ फिनॉल्स और अल्कोहल्स एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज एसाइलेशन। तो एसाइलेशन किस तरीके से होता है वो भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज दिस इज फिनॉल मॉलिक्यूल, देन इट विल रिएक्ट विद a compound which has acyl group. तो for example this is C double bond O CH3Cl। तो कुछ यही आपका acyl group हो गया in presence of pyridine। pyridine की presence में रिएक्शन होती है। now it will form, so HCl will get separated। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा O C double bond O CH3। तो इस तरीके से आपका जो कंपाउंड होगा एसाइल ग्रुप होगा, दिस इज द एसाइल ग्रुप इस पे अटैच हो जाएगा। सो इट विल फॉर्म फिनाइल एसिटेट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फिनाइल एसिटेट। सो इन प्लेस ऑफ एसिड क्लोराइड यू कैन ऑल्सो यूज एसिड एनहाइड्राइड फॉर सेम रिएक्शन फॉर एसाइलेशन। तो एसाइल ग्रुप ऐड करने के लिए आप एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। तो कैसे, यहाँ पे हमने एक एसिड एनहाइड्राइड यूज किया। सो व्हाट रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये वाला जो ग्रुप होगा दिस ग्रुप विल कंबाइन विद H, तो H हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस एसाइल ग्रुप विल कंबाइन विद O। तो यहाँ पे O के साथ तो कंबाइन होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज बेंजीन रिंग O, then C double bond O CH3, and this CH3 C double bond O and O will combine with H, so it will become CH3 COOH, that is ethanoic acid, or you can say acetic acid। तो यहाँ पे acetic acid इजिली फॉर्म होता है और यहाँ पे जो फिनाइल एसिटेट है वो भी फॉर्म हो जाएगा। देन आपके पास नेक्स्ट फॉर द टू डिफरेंट बेंजीन रिंग, सो व्हाट हैपेंस इन दीज टू रिएक्शंस, द कंपाउंड जो अल्कोहल है और यहाँ पे आपने क्या फॉर्म किया, किसके साथ रिएक्शन की, यहाँ पे आपने सेम एसिड क्लोराइड के साथ ही रिएक्ट करोगे। सो HCl विल बी सेपरेटेड और आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द कंपाउंड दैट इज फिनाइल बेंजोएट। इट्स नेम इज फिनाइल बेंजोएट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिनाइल बेंजोएट। द नेक्स्ट इज एल्काइलेशन। वैसे इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन। हाउएवर इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये नेम रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज एल्काइलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। सो हाउ द एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज डन विद एन alkali. So what happens when the alcohol combines with alkali, it will form sodium phenoxide, and then sodium phenoxide is treated with हेलो एल्केन। तो जैसे CH3I हेलो एल्केन के साथ ट्रीट किया, पहले किसके साथ, NaOH के साथ ट्रीट किया, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म किया, फिर सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट करेंगे किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ। सो देयर इज एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, यू कैन सी दैट इज एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एल्काइलेशन। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच हो रखा है, सो इट्स नेम इज methoxybenzene, it is an ether, so its name is methoxybenzene. Then the next is reaction with ammonia। यहाँ पे आप देख सकते हो Na और I अलग हो गए और CH3 यहाँ पे अटैच हो गया। So reaction with ammonia कैसे होगा, OH group will get separated and hydrogen
with one OH, so it will form water molecule, और जो बाकी का NH2 होगा, NH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो in the presence of एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एट 573 केल्विन, तो तब जाके ये रिएक्शन होगी. तो बहुत सिंपल है. तो ये अल्कोहल जैसी रिएक्शन सारी. देन रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. तो जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या फॉर्म करता है, हेलो एल्केन फॉर्म करता है. ये क्या फॉर्म करेगा, हेलो बेंजीन. दैट इज विद रिएक्शन ऑफ PCl5 इट विल फॉर्म क्लोरो benzene. So generally the reaction takes place in presence of red phosphorus. So this is how the reaction will take place. तो alcohols के केस में भी same reaction होती है. Next is the reactions which are different from those of alcohols. तो alcohol से different reaction हम इसमें देखेंगे कि जो alcohols की तरह नहीं होती है. So first of all we will talk about the acidic character of phenols. So phenols are weak acid. Phenols क्या होते हैं, weak acid होते हैं, but still they are more acidic than alcohols. So they are weak acids but more acidic than those of alcohols. So the question is why the phenols are more acidic than alcohols. Alcohols से ज़्यादा acidic क्यों होते हैं phenol? So you know that ROH, this is alcohol, and this is OH, दिस इज फिनॉल. तो अब आपको पूछा जाता है कि भाई अल्कोहल और फिनॉल दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है. सो फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल. नाउ द रीजन क्या है, आपको मैंने बताया था. हम क्या देखेंगे, आपको जो लॉजिक यूज करना है कि जो सबसे ज्यादा इजीली H+ आयन लूज करेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा. और H+ आयन ज्यादा इजीली कब लूज करेगा, क्योंकि देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. जब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इजीली ऑक्सीजन के पास चले जाएं, और उसके लिए ऑक्सीजन की अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. और वो कब होगी, जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. नाउ यू नो दैट देयर आर सेवरल स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. तो हम कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं. वन इज दिस. सो इलेक्ट्रॉन पेयर, the lone pair of electron of oxygen will move to form the double bond and this bond will break. क्योंकि आपको पता है 4 बॉन्ड से ज़्यादा फॉर्म नहीं कर सकता है, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे अगर ये डबल बॉन्ड हो गया तो. सो इट विल बिकम डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. देन अलग, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो इसके साथ शेयर करने की कोशिश करेगा, तो फिर यहाँ पे 5 बॉन्ड नहीं हो सकते हैं, तो ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा. So the third structure, this is negative charge, then OH, तो यहाँ पे positive charge. Then the fourth one, that is O, positive charge H. Then this electron pair will go here, और यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा. एंड देन दिस, और लास्ट में ये जो डबल बॉन्ड है ये अगेन ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे. सो इट विल बी लाइक दिस, 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड एंड OH. तो ये 5 आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख रहे हो. नाउ ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था वो कहाँ घूम रहा है, कहाँ डिलोकलाइज्ड है, ये है इस पूरे जो बेंजीन रिंग है उसमें. और इसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. नाउ इफ द ऑक्सीजन हैज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू अट्रैक्ट दिस रेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, और इसकी वजह से वो इजीली क्या फॉर्म करेगा, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करेगा. सो इट इज फॉर्मिंग फिनॉक्साइड आयन. सो फिनॉक्साइड आयन, दैट इज O- plus H+. So it will form phenoxide ion, while ROH will form alkoxide ion. So RO- plus H+. So this is one of the reason. One is resonance stability of phenoxide ion. तो अगर आप phenoxide ion की resonance stability देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, this is O- ion, then this is not O+, this is just, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इधर चला गया तो वो शिफ्ट होता रहेगा. Then again this is not O+,
तो अगर आप फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी देखना चाहोगे, यू कैन सी दैट फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। और ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसका जो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे अल्कोहल पे, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में केवल इसको छोड़ के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इनको छोड़ के बाकी की जो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इनमें जो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाता है? डीलोकलाइजेशन हो जाता है। और अगर ये डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज को इतना इजीली अट्रैक्ट करेगा नहीं, तो ज्यादा रिएक्ट करेगा नहीं। सो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबिलिटी, व्हाइल एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल। एल्कोक्साइड आयन उतना स्टेबल होता नहीं है, तो इसकी वजह से एल्कोक्साइड आयन, आपको पता है मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या होगी? फ्रॉम लो स्टेबिलिटी टू हायर स्टेबिलिटी, कम स्टेबिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ हो जाएगा। तो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे? फिनॉक्साइड आयन। जबकि इसके लिए एल्कोक्साइड आयन फॉर्म करना इतना इजी नहीं होता है जितना इसके लिए फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करना होता है। तो इसीलिए इजीली फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करेगा, H+ आयन लूज करेगा और एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। सो दिस इज द एसिडिक कैरेक्टर एंड phenols are more acidic as compared to those of alcohols. Now the next is effect of electron donating and electron withdrawing group. So first of all we will see what is the effect of electron donating group. तो अगेन एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एसिडिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। सो फर्स्ट लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3. तो ये जो CH3 ग्रुप है वो कहीं पे भी हो सकता है, ऑर्थो पोजिशन और मेटा पोजिशन और पैरा पोजिशन. सो तो आपको पता है कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट विल पुश इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग. द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल पुश इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग. तो रिंग की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे तो रिंग पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. और अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, यू नो दैट देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दिस बॉन्ड. तो ऑक्सीजन के लिए ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. सो इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है. मैंने अभी आपको समझाया था अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज होती है तो उससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. राइट. तो यहां पे अब हमको ये देखना है दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा. सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा? तो इफ वी टॉक अबाउट फिनॉल देन यू कैन सी दैट फिनॉल विल हैव हायर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑल ऑफ दिस. इन सबसे ज्यादा हायर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फिनॉल की. क्यों होगी? क्योंकि जो ये ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे. अब इन तीनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की सबसे ज्यादा होगी जिसका इफेक्ट कम होगा. मतलब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे टुवर्ड्स द रिंग. तो जो इलेक्ट्रॉन्स कम पुश करेगा उसका इफेक्ट सबसे कम होगा. तो यहां पे सबसे कम होगा मेटा. मेटा क्यों? मेटा का इफेक्ट सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है सबसे ज्यादा कहां पे होती है? वो होती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. तो अभी हमने डिस्कस किया था जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे. तो ऑर्थो एंड पैरा पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. तो मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम होती है, तो पुश अगर इलेक्ट्रॉन्स करेगा भी तो ज्यादा इफेक्ट उसका रिंग पे नहीं पड़ेगा. देन वी टॉक अबाउट द पैरा एंड सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ऑर्थो की. अब इन दोनों में देख लेते हैं क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है. क्योंकि जब हम रेजोनेंस देख रहे थे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे ज्यादा थे? ऑर्थो पे या फिर पैरा पे. तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या तो यहां पे ज्यादा होगी या तो यहां पे ज्यादा होगी. अब आपको ये देखना है कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पुश करेगा, क्योंकि जो ज्यादा पुश करेगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा डिक्रीज करेगा. उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी. तो ये ज्यादा क्लोज है किसके? OH ग्रुप के. तो ये क्या करेगा? पुश तो दोनों ऑलमोस्ट लगभग इक्वली करेंगे, लेकिन ये OH ग्रुप के ज्यादा क्लोज है तो
इसके पुश करने से जो इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन के पास होगी वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, जबकि ये सबसे दूर है तो इसके पुश करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी इसकी वजह से होगी. सो दिस इज द रीजन व्हाई द ऑर्थो इज लेस एसिडिक देन पैरा. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो अब विथड्रॉइंग ग्रुप पे आ जाते हैं. तो सेम ऐसा ही इफेक्ट उसमें भी होगा. यही चीज हमको उसमें भी देखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करता है. तो पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. द फर्स्ट इज नाइट्रो ग्रुप्स. तो नाइट्रो ग्रुप में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो ये नाइट्रो, पैरा नाइट्रो हो गया. देन वी हैव ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. देन वी हैव मेटा नाइट्रोफिनॉल. तो अगर आपको बोला जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो देखिए यहां पे होता क्या है, NO2, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. सो इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स. तो जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिंग में, जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनको भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. सो इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, in the benzene ring. So therefore the electron density at oxygen atom will also decrease, oxygen of OH group, and due to this it will be very easy to attract the shared pair of electron between O and H for oxygen. तो ऑक्सीजन के लिए बहुत इजी हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करना, तो H प्लस आयन इजीली दे देगा. इसका मतलब ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी फिनॉल की. सो if we talk about para, ortho and meta nitrophenol, so you know that at ortho and para position electron density is highest. तो ortho और para position पे electron density सबसे ज्यादा होगी. अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे सबसे ज्यादा है तो नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो एंड पैरा पे होंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पुश कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है. द सेकंड थिंग इज कि ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो बहुत क्लोज है OH के, जबकि ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो बहुत दूर है OH के. तो अगर दूर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दूर है उससे, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो OH से उतनी दूर जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी. जबकि ये थोड़ा क्लोज है, ये काफी क्लोज है, तो ये अट्रैक्ट तो बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत क्लोज है किसके, OH ग्रुप के, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम इसमें नहीं होगी जितनी कम इसमें होगी. तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन एटम पे ये सबसे ज्यादा कम करता है, ये उतना कम नहीं कर पाता है. सो देयरफॉर इट विल बी मोर एसिडिक देन दिस. एंड देन वी टॉक अबाउट मेटा. तो अगर हम मेटा की बात करें तो मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं है ज्यादा. यहाँ पे जो मेटा पोजिशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कम है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भी ज्यादा पुश नहीं कर पाएगा. सो दिस इज लीस्ट एसिडिक, तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा. Then we have phenol. So this is the effect of electron donating and electron withdrawing group on the acidic strength of phenol. Next is reaction with zinc dust. So alcohol reacts with zinc dust and heated it will form benzene. तो ये benzene form करेगा किसका, ये जो phenol है उसका रिडक्शन करके यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा. सो इट विल फॉर्म ZNO. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एरोमेटिक रिंग. तो अभी OH ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शन हमने पढ़ ली है. नाउ reactions involving aromatic rings. So the first is halogenation. So these reactions are quite similar to in those of haloarenes. So the first is halogenation. So you can see on reaction with bromine water. So on reaction with bromine water, it will form 2,4,6 tribromophenol because OH group की वजह से जो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप, the electron density will increase. So therefore the electrophilic substitution, क्योंकि ये क्या होता है जो ऑर्थो और पैरा पे होता है, that is electrophilic substitution. So electrophilic substitution जनरली क्या होता है, ऑर्थो पे होता है या फिर पैरा पे होता है, लेकिन OH ग्रुप की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ऑर्थो और पैरा पे, तो जो सब्सटीट्यूशन होता है वो ऑर्थो पे भी हो जाता है और पैरा पे भी हो जाता है, और दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल. द नेक्स्ट इज if you want to have the reaction at either ortho or para, so you have to
do the reaction and CS2 में जो कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड में ये रिएक्शन अगर होगी एट 243 केल्विन, देन यू विल गेट orthobromophene or parabromophene, and parabromophene will be the major product. Obviously it is because of symmetry, so it is quite symmetrical, therefore it will be the major product and it is minor product जो ortho वाला होगा. The next is nitration. So nitration will take place with nitric acid. So on reaction with dilute nitric acid, it will result in the formation of orthonitrophenol and paranitrophenol. Obviously paranitrophenol is major product, orthonitrophenol is minor product. Now if the reaction takes place in the presence of concentrated sulfuric acid, then you will get 2,4,6 trinitrophenol and it is known as picric acid. So this compound is known as picric acid. Now the next is sulfonation. So sulfonation takes place with concentrated sulfuric acid. अब sulfonation की conditions है. If the sulfonation takes place at 293 Kelvin, then ortho derivative, that is major product, and para derivative will be minor product. तो यहाँ पे जो ortho derivative होगा आपका, that is 2-hydroxybenzene sulfonic acid is major product. But if the reaction takes place at 373 Kelvin, then the major product will be para derivative, that is 4-hydroxybenzene sulfonic acid. तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा तो आपके यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे. द नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हर जगह एक जैसी होती है. देयर आर टू रिएक्शंस, वन इज फ्रीडल क्राफ्ट alkylation and other is Friedel-Crafts acylation. So alkylation requires haloalkane and anhydrous AlCl3. It takes place in the presence of anhydrous AlCl3. तो anhydrous aluminum chloride की presence में ये reaction होती है. तो दो reactions होती हैं, एक alkylation जिसमें addition of alkyl group होता है, that is for example CH3, it is an alkyl group, so you will use haloalkane, that is CH3Cl. तो यहाँ पे anhydrous AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, जो Cl होगा ये क्या होगा, ये जो यहाँ पे H रहा होगा, ऑब्वियसली सब जगह पे H होता है तो ये HCl सेपरेट हो जाएगा और CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस H को रिप्लेस करके. उसी तरीके से इसको भी रिप्लेस कर सकता है. सो देयर आर टू प्रोडक्ट्स, वन इज ऑर्थो एंड अदर इज पैरा. सो यू कैन से इट इज ऑर्थोक्रिजोल एंड इट इज पैराक्रिजोल. तो ऑर्थोक्रिजोल इज माइनर प्रोडक्ट ऑब्वियसली एंड पैरा इज मेजर. The next is in Friedel-Crafts reaction. Next is Friedel-Crafts acylation. It is called acylation because in this addition of acyl group, that is RCO. RCO को क्या कहते हैं हम, acyl group. तो इसमें addition of acyl group होता है. So it will form again. This is ortho derivative and this is para derivative. So this is ortho acetyl phenol. And this is para acetyl phenol. So it is major product while it is minor product. So this is the Friedel-Crafts reaction. Next is Kolbe-Schmidt reaction, or it is just called Kolbe's reaction. So in this reaction alcohol is treated with first NaOH, so it will form sodium phenoxide. Then with carbon dioxide it will form an addition product. Now in this addition product rearrangement will take place. So what happens in this rearrangement, COONA will come here at ortho position and H, because it has H will move to this position. So it will form this compound. Now on its acidic hydrolysis it will form carboxylic acid. What is the name of this carboxylic acid? That is ortho, or you can say 2-hydroxybenzoic acid. So 2-hydroxybenzoic acid या फिर it is also called salicylic acid. क्या नाम है इसका, salicylic acid is its common name. इसका common name है salicylic acid. So next is Reaumur-Tiemann reaction. So what happens in Reaumur-Tiemann reaction? Alcohol is treated with chloroform in the presence of
alkali NaOH, so it will lose HCl from here, one hydrogen from here and Cl from here. तो एक क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और CHCl2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा. देन अगेन ऑन ट्रीटिंग विथ फर्दर NaOH, ये जो Cl ग्रुप होंगे दोनों, ये दोनों के दोनों ये भी रिप्लेस हो जाएंगे विद OH. तो यहाँ पे OH से ये रिप्लेस हो जाएंगे. देन यहाँ पे Na होगा आपके पास, so Na will attach here and CHCl2 will attach here. Now OH जब यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो आपको पता है एक कार्बन एटम पे अगर दो OH ग्रुप्स होते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है. सो इट विल इमीडिएटली अंडरगो डिहाइड्रेशन. तो इसमें इमीडिएटली डिहाइड्रेशन होगा, H2O विल बी रिमूव्ड and it will form an aldehyde, you can see here. और इस ONA से Na को रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करना पड़ेगा. सो इट विल फॉर्म 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. So 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और it is also called सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलिक एसिड. तो ये दो कंपाउंड्स हैं, ये दो रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है, जनरल एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. द नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर फिनॉल. सो वी विल स्टडी अबाउट 2 टेस्ट फॉर फिनॉल. द वन इज एजोडाई टेस्ट. सो एजोडाई टेस्ट इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डाइazonium chloride. So it is benzene diazonium chloride. So when benzene diazonium chloride is treated with phenol in alkaline medium, so it will form para-hydroxyazobenzene. So it will form para-hydroxyazobenzene, and this is an azodie of orange color. So if you will see an orange color, it means it is phenol. So this is how you can differentiate between phenol and alcohol. तो phenol और alcohol के बीच में differentiate कैसे करना है. अगर ये आपको orange color दिखता है, इसको बेंजीन डाइazonium के साथ, जो फिनॉल है उसको बेंजीन डाइazonium के साथ अगर आप ट्रीट करते हो इन अल्कलाइन मीडियम, तो आपको एक ऑरेंज कलर का एजोडाई मिलेगा. अल्कोहल के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा. द सेकेंड इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट. सो ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद solution of neutral solution of ferric chloride, it will result in the formation of a green or violet color. तो जो फिनॉल होगा, अगर आप फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ अगर आप इसको ट्रीट करोगे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये ग्रीन या फिर वॉयलेट कलर शो करेगा, जबकि अल्कोहल्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं. सो दीज 2 आर द टेस्ट फॉर फिनॉल. सो this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comment section. Thank you very much.